Hello everyone. So dear students, as you know, we have completed our chapter that is force and pressure, and for today we are going to discuss about new chapter that is metals and non-metals. Okay, and my today's topic pertains to class 8. So before starting the chapter metals and non-metals, let me discuss about matter. So let me tell you what is matter. So matter is anything which occupies space and has got mass. So matter मतलब कोई भी चीज़ जो जगह पकड़े और जिसका एक प्रॉपर मास हो यानी वेट हो उसे हम मैटर कहते हैं. ठीक है. यू कैन टेक सो many examples of matter which you see in your around, which you see in your classroom, everywhere. For example, if you take an example from your classroom, that is board, your bag, your books, your notebooks, your pen, your pencil, everything which occupies space and has a mass, that is called matter, right? So further, matter is classified into three categories. Matter is divided into three different categories, that is elements, compounds and mixture. Clear? So we will discuss these one by one. So first of all, let me tell you about elements. What are elements? These elements are the purest form of any substance. These are made up of same kinds of atoms, and in elements there are in matter there are total 118 elements, out of which 92 are natural, and out of 92 70 are metals and 22 are नॉन मेटल्स. ठीक है. सो क्या कहा मैंने कहा एलिमेंट्स को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में. एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सबस्टेंस होते हैं, मतलब ये एक ही सबस्टेंस से बने होते हैं, इनमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, एक ही एटम से बने होते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं. दैट्स वाई एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट फॉर्म. और एलिमेंट्स जो है दे आर टोटल 118 इन नंबर, 118 है ये, जिनमें 92 नेचुरल है और 92 में 70 मेटल्स है एंड 22 नॉन मेटल्स है. ठीक है. फर्दर वी विल क्लासिफाई द एलिमेंट्स विच वॉज गिवन बाय लेबोसिस. So elements are further classified into three categories, that is metals, non-metals and metalloids, right? So further we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. ठीक है. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं physical state of metals and non-metals. Physical state मतलब इनका state क्या है, कौन से form है. They may be solid, they may be liquid, they may be gaseous, right? So usually metals are in solid form. metals को जो है solid form में देखा गया है. ठीक है. For example, copper, aluminium, silver, magnesium. ठीक है. And non metals are generally solid or in gaseous form. ठीक है. For example, sulfur, phosphorus, iodine. ठीक है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉलिड में सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड गैसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है. बट इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल स्टेट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन मेटल्स एज वेल एज इन नॉन मेटल्स. एक्सेप्शन मतलब फिजिकल मेटल्स तो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट इसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में भी देखे गए हैं जो एक्सेप्शन है. ठीक है. दैट इज मरकरी एंड गैलियम जो है ये लिक्विड फॉर्म में है इन मेटल्स. एंड नॉन मेटल्स में जो एक्सेप्शन है दैट इज ब्रोमीन विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इन नॉन मेटल्स. ठीक है. ये क्लियर हो गया. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी विच कम्स इन ऑर्डर दैट इज लस्टर. अब ये लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स शाइन, जो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में. आपने देखा होगा गोल्ड में बेसिकली या सिल्वर में जो चीज़ें चमकती हैं, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन नॉन मेटल्स, दैट इज लस्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड शाइन. एंड देयर आर सम मेटल्स विच हैव good shine and which are used in making jewelries.
फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ठीक है. And there is another exception in luster, that is sodium and potassium have less luster. ठीक है, luster की अगर हम बात करें तो सिल्वर और गोल्ड में जो है अच्छी खासी लस्टर होती है, जिसे हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जबकि सोडियम और पोटाशियम में लेस लस्टर होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स गेट्स डिपॉजिटेड ओवर इट, दैट्स वाई दे हैव लेस लस्टर. ठीक. And if you talk about non-metals, they don't have shine. But here also exception presents, that is graphite presents a less amount of shine. Graphite में जो है हल्की सी शाइन होती है, ठीक है. अदरवाइज नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है, बट ग्रेफाइट जो है एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, जिसमें हल्की शाइन हमें दिखती है. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. सो व्हाट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी? दैट इज़ मेलेबिलिटी. अब मेलेबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जिसमें मेटल्स को जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है व्हेन बीटन. ठीक है, जब भी मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट्स में, इन्हें हम मेलेबिलिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को. एंड नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन मेलेबल, मतलब ये जो है इनको बीट नहीं किया जाता और ये बीट होते भी नहीं हैं थिन शीट्स में. ठीक. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ मेलेबिलिटी इन मेटल्स आर एल्यूमिनियम एंड सिल्वर. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम अगर हम स्वीट्स की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो आप लोगों ने भी देखा होगा उसके ऊपर जो है वो शाइनिंग कवर जैसा लगा होता है ना. तो उसको उठा के हम स्वीट्स को खा जाते हैं. तो व्हाट इज़ दिस? वो क्या है? वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की ऐसी कि उनको थिन शीट्स में ड्रॉ किया होता है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज सिल्वर फॉयल. सिल्वर फॉयल भी हम यूज़ करते हैं, विच इज़ मोस्टली यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड मटीरियल्स. जैसे सपोज हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो या हम बच्चों को लंच देते हैं, तो हम उस फॉयल के अंदर जो है उनका जो भी फूड मटेरियल होता है उसे कवर करके उनको दे देते हैं. सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, एंड दिस प्रॉपर्टी, this malleable property is not present in non-metals, that's why they are non-malleable. And you can take the examples like plastic, wood, iodine, bromine. If you break the plastic, अगर हम प्लास्टिक को ब्रेक करें या वुड को ब्रोक करें, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, बट शीट्स में ये कन्वर्ट नहीं होगा. दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. So dear students, here I conclude my today's topic, and rest of the properties of metals and non-metals we will discuss in our tomorrow's lecture. Till then, take care and thank you.